بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام اور معزز حاضرین مجلس، ہم اور آپ جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کا نام ہندوستان ہے، جسے بھارت اور انڈیا بھی کہا جاتا ہے۔ آزاد ہندوستان کی تاریخ میں دو تاریخیں انتہائی اہمیت کی حامل ہیں۔ ایک تو 15 اگست کی تاریخ ہے، جسے ہم اور آپ یوم آزادی کے نام سے جانتے ہیں، جشن مناتے ہیں، ملک کے کونے کونے میں ترنگا لہراتے ہیں، جھنڈا پھہراتے ہیں، کیونکہ 15 اگست 1947 عیسوی کو 1947 کو ہمارا ملک انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا۔ اس ملک کو آزادی ملی۔ آزادی کی تاریخ ایک لمبی تاریخ ہے اور وہ ایک الگ موضوع ہے، اسے فی الحال میں چھیڑنا نہیں چاہتا، اس موضوع پر ابھی گفتگو نہیں ہوگی۔ ایک دوسری تاریخ ہے جو 26 جنوری کی تاریخ ہے، جسے ہم اور آپ یوم جمہوریہ کے نام سے جانتے ہیں، جشن مناتے ہیں، ملک کے کونے کونے میں ترنگا لہرایا جاتا ہے، جھنڈا پھہرایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 26 جنوری 1950 عیسوی کو اس ملک کی جمہوریت کا اعلان کیا گیا اور اس ملک کے لیے ایک سنویدھان بنایا گیا، کانسٹیٹیوشن تیار کیا گیا، جس کا دار و مدار سیکولر بنیادوں پر تھا، جسے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر صاحب کی سربراہی میں 7 رکنی کمیٹی نے تیار کیا تھا، جسے تیار کرنے میں 2 سال 11 ماہ 18 دن لگے تھے۔ 26 جنوری 1950 عیسوی کی تاریخ وہ تاریخ ہے، اسی سیکولر کانسٹیٹیوشن، اسی سیکولر دستور کے نفاذ کا اعلان کیا گیا کہ آج سے ہمارے ملک میں یہ دستور نافذ ہوگا، یہ قوانین نافذ ہوں گے، جسے ملک کے اس کمیٹی نے تیار کیا۔ اور وہ دستور یوں ہی تیار نہیں ہوا، اس دستور کو تیار کرنے میں مدت بھی کافی لگی اور اس پر بہت سارے افراد نے بحث و مباحثے کیے، اور پھر ایک لمبی گفتگو کے بعد، گفت و شنید کے بعد، لمبے بحث و مباحثے کے بعد اسے پاس کیا گیا۔ خیر، 26 جنوری 1950 عیسوی کو ہمارے ملک میں اس سنویدھان کے نفاذ کا اعلان کیا گیا۔ اسی لیے ہم 26 جنوری کو یوم جمہوریہ کے نام سے، ریپبلک ڈے کے نام سے جانتے ہیں، یاد کرتے ہیں، جشن مناتے ہیں۔ دوستو، ہمارے ملک کا جو دستور ہے، جو بنایا گیا، تیار کیا گیا، اس کی بنیاد کسی ایک مذہب پر نہیں ہے، سیکولر ہے، دین سے، مذہب سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس ملک کے باشندے چونکہ مسلمان بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، جین بھی ہیں، بدھ مت کے ماننے والے بھی ہیں، اور اسی طرح دیگر مذاہب کے افراد بھی ہیں، کرسچن بھی ہیں۔ تو ایسا قانون بنایا گیا، ایسا دستور تیار کیا گیا، ملک کے ایسے اصول و ضوابط بنائے گئے کہ سب کی جان، سب کے مال، سب کے مذہب، سب کی عزت و آبرو، سب کی زمین و جائیداد اور سب چیزوں کی حفاظت کی جائے، کسی کا کوئی نقصان نہ ہو اور ملک جمہور رہے۔ جمہوریت کیا ہے؟ جمہوریت کے کیا فوائد ہیں، کیا نقصانات ہیں؟ جمہوریت کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ جمہوریت کے نشیب و فراز کیا ہے؟ یہ بھی الگ الگ عناوین ہیں جن پر فی الحال گفتگو کرنے کا موقع نہیں، وقت نہیں ہے۔ ہم اتنی بات یاد رکھیں کہ 26 جنوری 1950 عیسوی کو ہمارے ملک کی جمہوریت کا اعلان کیا گیا اور ایک خاص سنویدھان کے نفاذ کا اعلان کیا گیا، جو سنویدھان کا دار و مدار سیکولرزم پہ ہے، کسی خاص مذہب پہ نہیں ہے۔ یہ جو جمہوریت ہے، جو ہمارا ملک جمہوری ہے، اصل میں جمہوریت میں ہوتا یہ کہ عوام اپنے نمائندے کو چنتی ہے اور وہ نمائندے جاتے ہیں، ممبر پارلیمنٹ بنتے ہیں، ایم ایل اے بنتے، ایم پی بنتے،
राज्य सभा, लोक सभा, दीगर चीजों के मेंबरान बनते, वो MLC बनते, और फिर वो हजरात मुल्क के इंतजाम बात को संभालते हैं। तो मुल्क जमहूरी है। जमहूरियत के सिलसिले में हमें एक बात समझनी चाहिए, जो हमारी तकरीर और हमारे इस बयान का असल पॉइंट है, कि जमहूरियत की जो बुनियाद है वो किन चीजों पर है। जमहूरियत के सुतून क्या है, जमहूरियत के पिलर्स क्या है, हमें वो जानना और समझना चाहिए। अगर वो पिलर्स सही सालिम रहेंगे, वो सुतून सही सालिम रहेंगे, तो फिर ये मुल्क जमहूरी है और जमहूरियत सही सालिम रहेगी। अगर वो सुतून सही सालिम नहीं है तो ये जमहूरी मुल्क की जमहूरियत सही सालिम नहीं रह सकती है। जमहूरियत के 4 सुतून हैं, आप उसे अच्छी तरह जाने। सबसे पहला सुतून है जमहूरियत का, वो अदलिया का निज़ाम है, कि जो अदालत है मुल्क की, उसका निज़ाम सही होना चाहिए। अदालत के फैसले मुंह देख कर नहीं होने चाहिए, दोस्ती और दुश्मनी की बुनियाद पर नहीं होने चाहिए, बल्कि शवाहिद, दलाइल और गवाहान की बुनियाद पर होनी चाहिए। अदलिया का निज़ाम सही होगा तो मुल्क की जमहूरियत सही सालिम रहेगी। अदलिया का निज़ाम गड़बड़ होगा, मुल्क की सालिमियत खतरे में होगी। जमहूरियत का दूसरा सुतून मजलिस मुकन्निना है, वो मजलिस जो कानून बनाती है, जिसे कानून साज मजलिस हम कहते हैं। कानून बनाने वाले अफराद भी सही सालिम हो, उनके दिल में किसी के मुतालिक खोट ना हो, बाशिंदों के मुतालिक अदावत ना हो, वरना फिर कानून भी वो ऐसा बनाएंगे कि किसी के लिए फायदा होगा, किसी के लिए बहुत नुकसान हो जाएगा। तो जमहूरियत का एक दूसरा सुतून है मजलिस मुकन्निना। जमहूरियत का एक तीसरा सुतून है मजलिस इंतजामिया। जो जमहूरी निज़ाम को चलाते हैं, जो देखरेख करते हैं, उस मजलिस का भी सही होना जरूरी है, वरना मुल्क का निज़ाम नहीं चल सकता है। एक कंपनी है, एक फैक्ट्री है, कारखाना है, उसके मुलाजिमीन का, जिम्मेदारान का अच्छा होना, ईमानदार होना, अमानतदार होना जरूरी है, वरना निज़ाम नहीं चल सकता है। जमहूरियत का एक चौथा सुतून है और वो है सहाफत, मीडिया। मीडिया का भी सही होना जरूरी है, वरना मुल्क का निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा। तो हमें मालूम हुआ दोस्तों कि जमहूरियत के 4 सुतून हैं। पहला सुतून अदलिया का निज़ाम, दूसरा सुतून मजलिस मुकन्नना, तीसरा सुतून मजलिस इंतजामिया और चौथा सुतून सहाफत। हिंदुस्तान जब आजाद हुआ, यकीनन आजादी के बाद हमारे मुल्क के का जो दस्तूर था उसका निफाज हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह जमहूरी निज़ाम ठीक ठाक चल रहा था। ये चारों सुतून अपनी जगह सही सालिम थे, या अगर ये कहा जाए कुछ गड़बड़ी थी तो हल्की फुल्की गड़बड़ी थी। लेकिन जब से ये हुकूमत, जो मौजूदा हुकूमत है, जिसे हम बीजेपी हुकूमत कहते हैं, बीजेपी की हुकूमत है, जब से ये हुकूमत आई है उस वक्त से ये चारों सुतून डगमगा रहे हैं। चारों सुतून अब तब गिरने वाले हैं। क्या आपने अदलिया का निज़ाम नहीं देखा कि मुस्लिम औरतों ने 1 करोड़ से ज्यादा औरतों ने तलाक़े सलासा की मुखालफत में दस्तखत, सिग्नेचर मुहिम करके मेमोरेंडम पेश किया, लेकिन हुकूमत ने मुसलमानों के खिलाफ कानून बना दिया। क्या आपको ये मालूम नहीं, जब सीए की बात आई, एनआरसी की बात आई, जब लोगों ने एहतिजाज किए तो शाहीन बाग में कैसा जुल्म किया गया, मुल्क के कोने कोने में कैसा जुल्म किया गया, और फिर जेएनयू के, जामिया मिल्लिया के, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और दीगर इदारों के तलबा को जेल में डाल दिया गया। और बहुत सारे फैसले अदालत के ऐसे आए जो इंतहाई गलत फैसले, वो फैसले बता रहे हैं कि अदालत हुकूमत के चेहरे को देखकर फैसला करती है, अदालत हुकूमत के इशारे पर चल रही है। जब अदलिया का निज़ाम गड़बड़ हो जाए तो मुल्क का सेकुलरिज्म, मुल्क की डेमोक्रेसी, मुल्क की जमहूरियत खतरे में पड़ जाती है। क्या आपने मजलिस मुकन्नना के बारे में नहीं देखा?
और देखें यूपी हुकूमत ने लव जिहाद के बारे में और न जाने कैसे कैसे उल्टे सीधे कवानीन बनाकर पेश किए कि एक मजहब को टारगेट बनाया जा रहा है और एक मजहब को सरों पर बैठाला जा रहा है। क्या ये जमहूरी मुल्क का निजाम है? सेंटर से भी ऐसे कवानीन पास हो रहे हैं और मजलिस मुक़न्नना ऐसी बातों को पास करवा रही है और ऐसी बातों की कोशिश कर रही है जो मुल्क के बाशिंदों के मफाद के खिलाफ है। ये जमहूरियत के सतून को गिराना नहीं है, कमजोर करना नहीं, तो और क्या करना है? क्या आपने मजलिस इंतजामिया को नहीं देखा कि जो अफराद हुकूमत की जिम्मेदारी संभाले हुए वो कैसे अपने मातहतों के साथ जुल्म कर रहे हैं? आपने मॉब लिंचिंग की बातें नहीं सुनी? क्या आपने उसकी तस्वीरें नहीं देखी? क्या आपने उसके मनाजिर से वाक़िफ़ियत हासिल नहीं की? ये जुल्म नहीं तो क्या है? मजलिस इंतजामिया क्या कर रही है? क्या वो इन चीजों को खत्म नहीं कर सकती है? यकीनन सेकुलरिज्म को ढाया जा रहा है, मुल्क की जमहूरियत का खून किया जा रहा है। और चौथा सतून जो सहाफत है उसके बारे में मैं क्या कहूं, क्या बताऊं मैं? आप में से सब लोग वाकिफ हैं। मुल्क में बड़ा से बड़ा हादसा पेश होता है, लेकिन सहाफत उसे कुछ और रुख दे देती है, मीडिया वाले उसे कुछ और रुख दे देते हैं। इसीलिए हिंदुस्तान की जो मीडिया है उसे लोग गोदी मीडिया इसी वजह से कहते हैं। हुकूमत की तलवे चाट रही हो, हुकूमत के मंशा के मुताबिक काम कर रही है, हुकूमत के इशारे पे नाच रही है। जिस तरह कुत्ते को रोटी के 2 टुकड़े फेंक दिए जाए और कुत्ता उसे खाने लगता है, ये हाल आज के मीडिया के अफराद की है। अगर हमारे मुल्क के अदलिया का निज़ाम, मुल्क की मजलिस मुक़न्नना, मजलिस इंतज़ामिया और सहाफत का जब ये मामला हो जाए तो फिर याद रखिए दोस्तों, मुल्क का सेकुलरिज्म खतरे में आ जाता है। ये जुल्म नहीं है तो क्या है? जब मुल्क के संविधान ने फंडामेंटल राइट्स के तहत सबको अपने हुकूक के तलब करने की इजाजत दी है। आज कि पूरे हिंदुस्तान के किसान तकरीबन 2 माह से ज्यादा हो चुके हैं सड़कों पर हैं और जनवरी और दिसंबर की सर्दी, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह, ऐसी सर्दी में वो सड़कों पर है, लेकिन हुकूमत के कानों पर जू नहीं रेंग रही है। हुकूमत बात करने के तैयार नहीं है। किसानों का सिर्फ एक मुतालबा है कि आपने जो 3 कवानीन पास किए उन्हें वापस ले लीजिए, लेकिन हुकूमत को जिद है, अदलिया को जिद है, मजलिस मुक़न्नना को जिद है, मजलिस इंतज़ामिया को जिद है और सहाफत वाले तो इन सब को अलग ही रुख दे रहे हैं। उन्हें जिद है कि नहीं, तुम परेशान हो तो हो, हम इन कवानीन को वापस नहीं लेंगे। ये जुल्म नहीं तो क्या है? ये मुल्क की जमहूरियत खतरे में नहीं तो क्या है? मुल्क का सेकुलरिज्म ढह नहीं रहा है तो क्या हो रहा है? इसलिए मैं ये कहता हूं कि आज जो हुकूमत है बीजेपी की, वो मुल्क के संविधान की कातिल है, वो मुल्क की जमहूरियत की कातिल है। वो ऐसी हुकूमत को हटाना चाहिए, ऐसी हुकूमत को सबक सिखाना चाहिए और ऐसी हुकूमत को पसे पुश डाल देना चाहिए, ओहदे से उतार के हटा देना चाहिए। इसके लिए हम तमाम बाशिंदों को आगे आने की जरूरत है, होश से काम लेने की जरूरत है, होशो हवास में काम करने की जरूरत है और समझना चाहिए इस हुकूमत ने जो जुल्म किया है और संविधान मुल्क के सेकुलरिज्म के साथ जो नारवा सलूक ये कर रहे हैं, उससे जमहूरियत खतरे में, डेमोक्रेसी खतरे में है और मुल्क का निजाम दरमबरम हो रहा है। एक खास रंग में मुल्क को रंगा जा रहा है। हमें मुल्क की हिफाजत के लिए आगे आना चाहिए, हमें जमहूरियत के सतून को बाकी रखने की कोशिश करनी चाहिए और हम सब की इज्जत व आबरू, मालो दौलत, जानो माल सब महफूज रहने चाहिए, उसमें कोई समझौता हमें नहीं करना चाहिए। इसके लिए हम सबको मिलजुल कर कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है ताकि मुल्क का संविधान खतरे से बच सके और मुल्क का संविधान महफूज रह सके।
सके। आइए हम अहद करते हैं 26 जनवरी की मुनासबत से, इस तारीख की आमद की मुनासबत से हम ये अहद करते हैं कि हम अपने मुल्क के संविधान को बचाने के लिए, मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए, यहाँ के बाशिंदों की इज्जत व आबरू की हिफाजत के लिए हम कोशिश करेंगे और आखिर तक कोशिश करते रहेंगे।